Good evening and namaste. Yes, it's my privilege and honor to receive such a prestigious award from Vikrant More sir. Yes, this is my second award and it has entirely changed my life. Vikrant sir has given us a platform to come up with lots of social cause. Whereas like at the time of Corona, I came up for all the teachers where they were committing suicide. And my motto was that each one teach five. और ये जाते जाते आज 15,000 टीचर ट्रेनिंग हो गया है ऑन अ सोशल कॉज. नॉट ओनली दिस, आई एम ऑल्सो डूइंग वन मोर रिसर्च ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, जहाँ पर डिप्रेशन बड़ों की बात करते हैं लेकिन वहाँ पर छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके डिप्रेशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं. देर आर लाइक सॉफ्ट टीचर्स ऑल्सो, देर आर लिटिल हार्श टीचर्स ऑल्सो. सो चिल्ड्रन आर कमिटिंग सुसाइड. सो उन पर भी थोड़ा रिलेटेड रिसर्च करके हम उन थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हैं जिससे बच्चों के लिए एंजाइटी डिप्रेशन थोड़ा कम हो सके. I came up with for children also, that is 3+3+3. So that is according to the rule. अगर बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, so 3 rule starts for start searching for 3 things around you. Second 3 stands for कि आपको अगर एंजाइटी हो रही है तो just listen 3 sounds, 3 different sounds, because sound work more on us, on a child and an overall body also, because this whole universe is made up of sound. और थर्ड 3 हमारा रिलेट करता है थ्रू आवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. स्टार्ट टेकिंग 3 नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो दिस वॉज माई मोटो विच आई केम डाउन फॉर द टीचर्स एंड नाउ फॉर द स्टूडेंट. एंड I accepted this award on behalf of Avinash Shembatwad. He is one of the class 1 officers of Maharashtra government. He is the Tahsildar. He is working in the ward of Jyoti, which is in Chandrapur district. He is working in the one of the tribal districts and doing a great work there. और एक तहसीलदार होके भी उन्होंने 3 फिल्म्स आज तक बनाई हैं और तीनों भी सोशल इश्यूज़ पे है. सो थैंक यू फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ चुनाव टू द फिल्म फेयर इंटरनेशनल फेस्टिवल कि उन्होंने इस फिल्म को अवार्ड दिया. ऑफ कोर्स ये फिल्म एक सोशल इशू पे है. चुनाव हमारे देश में जो भी होते हैं कंटिन्यूसली होते रहते हैं, लेकिन उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए टू डू एवरी इलेक्शन विदाउट फियर एंड फेवर, the entire election commission of India is responsible, and how they are performing the elections honestly, that is important, and that is the reason why democracy is still alive in India. सो चुनाव ये फिल्म उसी के ऊपर आधारित है. चुनाव ये मैसेज देती है कि वोटिंग ना करना ड्यू टू यूर सम सोशल इश्यूज़ और सम सोशल अनसेटिस्फाइड डिमांड्स, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. वोट ना डालना आपकी किसी डिमांड की वजह से ये कोई सोल्यूशन नहीं है. तो वोट डाल के ही आप डेमोक्रेसी में भाग लेके ही, डेमोक्रेसी का हिस्सा बन के ही आपको अपने प्रॉब्लम्स सरकार तक पहुंचाने हैं. तो ये मैसेज चुनाव ये फिल्म देती है, और ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि हर किसी को वोट डालना चाहिए. एंड द एंटायर award is also dedicated to the Election Commission of India and all those class 1 officers and all the government employees who make the entire process of election successful. and उसी की वजह से आज लोकशाही डेमोक्रेसी इंडिया में ज़िंदा है और आगे. जब प्यार ख़त्म हो गया दुनिया में, सो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस ये बोलना चाहूँगा कि टॉलरेंस और लव की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में इस टाइम पे, और अपना प्यार बरसाते रहिए. जो आज आपको अवार्ड मिला है, हाँ जी, किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट शॉर्ट फिल्म इन मोबाइल मोबाइल में शूट की है हमने ये फिल्म. हमने इसके एक्टर्स अली. My first film actually, so I came up with the idea, and it is about a very sensitive topic on LGBTQ people, and we wanted to pass a social message to the audience, and also the topic was very sensitive, so wanted to handle it very gracefully as well. And I had a really good partner with me, a very great director who has been doing film for a long time. So when I narrated the concept to him, like, we got a proper writer, and that's how eventually, like, after 7-8 months of going back and forth, that's how we finally came up with the whole script, the ideas, and finally we did the film. So yes, first of all, congratulations to Vikrant. Very beautifully organized the whole program and the event and the festival also, and thank you
फिल्म फेयर इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेयर, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम हमारी फ़िल्म को यहाँ दिखाएं, और उनके तरफ से ये अवार्ड भी आया तो बहुत अच्छा लगा कि एक सेंसिटिव फिल्म को, और जो कि आज का ज्वलंत सब्जेक्ट भी है और बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना भी था, और उसको अप्रिसिएशन जब मिलता है तो अच्छा लगता है कि आपकी फ़िल्म को सराहा गया और बहुत लोगों तक ये मैसेज भी पहुँचे कि वी हैव टू एक्सेप्ट वेयर द सोसाइटी इज़ मूविंग टूवर्ड्स। ये सबसे बड़ा मैसेज हम देना चाहते थे। द वे द सोसाइटी इज़ मूविंग, इफ़ वी एक्सेप्ट द सोसाइटी द वे इट इज़, देन दैट इज़ द ग्रोथ इन द रियल वे। सो दैट्स व्हाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे को हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं बता दूं कि मैं थी हैदराबाद में, और जब मुझे ये पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, हम टेलीविज़न में बहुत सारे फ्लैशी अवार्ड्स नाइट होते हैं, है ना, बहुत सारे फ्लैशी इवनिंग, स्टारी इवनिंग्स होते हैं, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज्ड होना ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो अपनी अपनी फ़िल्म के साथ आए हैं, और इतनी बेहतरीन फिल्में हैं मैं आपको बता नहीं सकती, और अलग अलग मुद्दों पर है। इतने हार्ड वर्किंग और इतने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ अंदर इस वक्त। इन लोगों के बीच में नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। ट्रॉफ़ी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे टैलेंट को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। मैम ऑल्सो कितना मोटिवेशन मिलता है जब अवार्ड मिलता है किसी कलाकार को या कौन से भी फील्ड वाले को जब अवार्ड मिलता है? बहुत बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब ऐसी चीज़ें आपके हाथ में आती है तो एक पुश मिलता है आपको आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए। सो अवार्ड्स आर ऑलवेज़ वेलकम एंड अवार्ड्स आर ऑलवेज स्पेशल। ऑल्सो 22 मार्च को जो है वाटर सेफ डे है, कुछ व्यूज़ है आपके? अरे इसके बारे में बात करते हैं, तुम अलग अलग मुद्दों पे चले गए। नो, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहली बात है तो कि ये जो फिल्म फेस्टिवल में जो कामया जी की फिल्म आई है, ऐसे तो 750 फिल्में आई थी ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास में, जिसमें से हम लोग ने 100 फिल्मों को चुना है जो बेस्ट सोशल सिनेमा है, जिसके अंदर से जो कामया जी की और डायरेक्टर सर की जो फिल्म है संजय जी की जो फिल्म है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि इसके अंदर एक सेलिब्रिटी है, इसलिए कि इसका सब्जेक्ट ही अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। Absolutely. और उसको परफॉर्म करने के बाद में हर सेलिब्रिटी ये चाहती है कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट करूं जहां पे मेरे अंदर के एक्टर को दिखाने का मौका मिले। तो सर थैंक यू सो मच कि आपकी इतने सालों की मेहनत जो आपने लिखी, बनाई, और बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं क्योंकि फिल्में पैसे से नहीं बनती है। फिल्में बनने की वजह एक डायरेक्टर का जज्बा, उसकी ज़िद, उसके एफर्ट्स और डेडिकेशन होते हैं। और एक एक्टर के लिए वो एक्टर हर एक रीज़न से आता है अपने सपनों को लेकर यहाँ पे माया नगरी में, लेकिन जब तक एक उसको अच्छा कंसेप्ट, अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक उसकी जर्नी मुझे लगता है अधूरी रहती, चाहे वो कितना भी पैसे वाला बन जाए। तो थैंक यू सो मच सर कि हमारे फिल्म फेस्टिवल में आपने फिल्म भेजी। नहीं, थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए कि इतने अच्छे फिल्म फेस्टिवल में आप लोगों ने हम लोगों को शामिल किया, हमारी फिल्म के ऊपर इतने अच्छे तरीके से, इतना पॉजिटिवली उसको रिकॉग्नाइज़ किया, और आज ये सम्मान हम लोगों को मिला है। हम मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बस ये ज़रूर कहेंगे कि एक सम्मान, इस तरीके की जो अवार्ड्स हैं, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जी सर, फिल्म के बारे में अगर कुछ बताएं। फिल्म के बारे में बताएंगे कि फिल्म का नाम है शी नेवर सेड, और शी नेवर सेड एक तरीके का जो डोमेस्टिक वायलेंस इसके ऊपर फिल्म है, और फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है। जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि सोसाइटी के हर तबके में, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मिडिल क्लास है या हायर क्लास है, IAS PCS से लेके पॉलिटिशियंस तक और गरीब घर में काम करने वाली बाइयों तक, लड़कियों तक, सबके साथ कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है। हमने इस फिल्म के ज़रिए कोशिश की है कि एक आईना हम बार बार दिखाएं। शी नेवर सेड वो कभी नहीं बोली, लेकिन आखिर कब तक, वो एक क्वेश्चन मार्क है। हमने कोई
सलूशन नहीं दिया है फिल्म में, हमने कोई इसके अंदर सोशल मैसेज नहीं दिया है, हमने सिर्फ एक आईना दिखाया है सोसाइटी को। उसमें मेल फीमेल हर तरीके के लोग, हर कैटेगरी के लोग उसमें शामिल हैं। आप देखो, शायद आपको दर्द समझ में आए। और जब फिल्म हमने बनाने की कोशिश की तो मैं हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, रंजन जी, राजीव जी, गौरव जी और बाकी पूरी टीम, हमारी जो राइटर हैं, उन्होंने जब पहली बार ये स्क्रिप्ट हमें सुनाई तो वाकई में सुन के पूरी स्क्रिप्ट में जो मज़ा आया और करने का एक जज्बा पैदा हुआ। और सबसे पहला जो चेहरा हमारे जहन में आया था वो काम्या जी का था। और काम्या जी के बारे में एक और चीज़ कहना हालांकि चाहूँगा। इन तक पहुंचने में हमें वाया घूम घूम के हम इन तक पहुँचे। और जब पहुँचे तो काम्या जी का जो एक एंथू था, जो इनका जो रिस्पांस था, वो उसने हमको बहुत बल दिया और हम फिर उसके बाद जुट गए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो एक दिमाग, एक स्क्रिप्ट का मिजाज, एक्टर का मिजाज, टीम का मिजाज और डायरेक्टर का मिजाज जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना तो कुछ निराली चीज़ बन जाती है। और यहीं पर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर का जिक्र करूँगा, वो ये कि फिल्म में एक गाना है। गाना हमारी फिल्म को और बहुत ऊपर लेके चला जाता है। गाने के अंदर पूरा एक सलूशन हमने क्रिएट किया है। और गाना लिखने के लिए हमारी जो लिरिसिस्ट हैं यहीं पर है, हमारे साथ में ही हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग बोलेंगे तो हम उनको इसमें शामिल कर लेंगे। और आइए, ये गाना 18 बार लिखा गया है। सर इधर देखूँ या इधर? ओके, तो गाना ये करीब 18 बार लिखा गया और एक एक शब्द चुनने के बाद में बड़ी जद्दोजहद के बाद ये गाना तैयार, चांद लगाने वाली स्थिति है। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि ये फिल्म आप सब तक भी पहुँचे। आप लोग प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर देना। किसी न किसी OTT के जरिए या बिल्कुल। जैसे भी हो आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। काम्या जी, ये फिल्म फेस्टिवल के बारे में अगर कुछ बताइए, आपकी कितना इम्पोर्टेंट है कि फिल्मों को सेलिब्रेट किया जाए और उनको appreciate मैंने किया आते ही ये बात कही थी, आते ही मैंने ये कहा, से मैंने शुरुआत ही इसी चीज़ से कहा कि मैं हैदराबाद में थी और जब मुझे पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ तो अगर ये कोई अवार्ड सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक ऐसा मंच जहाँ पर इतने बेहतरीन कलाकार हैं, इतनी बेहतरीन फिल्में हैं, ये मैं मिस आउट नहीं करना चाहती थी। और कैसे कैसे इतनी जद्दोजहद से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ टू रिसीव दिस, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म मीन्स अ लॉट। एंड अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी पूरी टीम को, फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। एंड बस आप लोग ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, हमारे काम को सराहते रहिए। काम्या जी के लिए आपको सबसे बड़ी सरप्राइज़ मैं आपको दे रहा हूँ मीडिया के सामने। मीडिया इसको नोट कर ले कि सबसे बड़ी सरप्राइज़ जो आपके लिए थी, हर साल हमारे पास में जो फिल्में आती है उन फिल्मों में से लगभग 14 फिल्में हर साल हम कांस में स्क्रीन करवाते हैं, ठीक है। तो लास्ट 3 साल से जो 15 फिल्में स्क्रीन हो रही है उसमें से 14 फिल्में हमारा फिल्म फेस्टिवल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रांस में। और इस साल जो 14 फिल्में हमने चुनी है उसके अंदर से एक फिल्म काम्या जी की है जो हम फ्रांस में स्क्रीन कर रहे हैं। और आज इस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल में आप देखोगे कि पूरा वर्ल्ड काम्या जी के टैलेंट को देखेगा। और ये हमको मीडिया के अंदर ही रिवील करना था, इसलिए मैंने आपके सामने मैं रिवील किया एक है। चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा थैंक यू कि बीइंग डायरेक्टर, बीइंग प्रोड्यूसर, हम लोग फिल्म बना लेते हैं, वो चाहे शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि उसको पब्लिक तक पहुंचाना, रिलीज़ करना या OTT पर डालना। और इस तरीके के जो फेस्टिवल्स हैं, मैं ख़ास तौर से नाम लूँगा फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल का, इनकी वजह से ये सिनेमा आप लोगों की तरफ पहुंच रहा है, दुनिया में पहुंच रहा है, लोगों के बीच पहुंच रहा है। और मैं इसके लिए विक्रांत जी का, फिल्म फेयर इंडिया का, सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और प्रिया के ज़रिए, जिसके ज़रिए हमारी बातचीत हुई, और मैं चाहूँगा कि इस तरीके से रेडी गाइस? ओके, एक्चुअली दिस इज़ ये जो है मैं इंटरनेशनल मूवी बनाया हूँ। इसके अंदर ऑल वेस्टर्न पीपल एंड अरब्स आर देयर। इंडियंस भी जो बने हैं उसमें अरब्स का काम कर रहे हैं, बट उन लोग अरब्स है, इंडियन नहीं है। दिस इज़ मूवीज़ मेड ऑन ह्यूमैनिटी। और इसके अंदर जो दुनिया में जो वॉर हो रही है, जो यूक्रेन का वॉर, रशिया, अमेरिका, इसराइल और जो
फ़लस्तीन और दूसरे जगह पर भी सोमालिया, आई डोंट नो अदर प्लेसेस और जगह जिधर वॉर का सिलसिला चल रहा है, तो दिस इज़ जस्ट अ कूलेंट टू दैट. इट्स 1.5 आवर मूवी एंड पूरी मूवी में डायलॉग्स नहीं है. इट्स अ साइलेंट मूवी वेयर वी आर गोइंग टू गिव अ पीस मैसेज दैट स्टॉप killing children and stop killing innocent families in war zone. So I always call this one as an experimental project, but I feel हाँ ये चलेगा क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा फीलिंग्स डाला हुआ है. फीलिंग्स का मतलब ये है कि जिसका कटता है उसको ही फील होता है. अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो सोशल मैसेजेस के ऊपर जो फिल्में बन रही हैं उसके लिए. और दूसरा हमारे जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है युवराज गोराडे जी, बाई चांस वो आज कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई जिसके कारण वो नहीं आ पाए, तो हम सब हमारी सारी टीम उनको धन्यवाद देना चाहती है जिन्होंने ये पहल की और हमारा साथ दिया उन्होंने. जैसे कि मैम ने और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अश्विन जी, इन्होंने बताया ही है सारा कि अंगदान के ऊपर ये मूवी बनी है. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है और जो हमारी मेहनत है, इस फिल्म को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जाए और जन जन तक हमारा संदेश जो हम देना चाहते हैं वो पहुँचे, तभी हमारा प्रयास सार्थक होगा. थैंक यू. मैं लीड रोल धन्यवाद कहना चाहूँगा. मुझे साइकोथेरेपिस्ट, करियर काउंसलर और मेंटल हेल्थ भी कोच हूँ, पेरेंट एजुकेटर भी हूँ. मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थाट्स, प्रोकास्टिनेशन से जूझ रहे होते हैं. देखिए आजकल मेंटल हेल्थ का इतना इशू हो रहा है जिस पर हम बात नहीं करते हैं. मैं उस पर अवेयरनेस लाना चाहती हूँ ताकि लोग अपने उस लाइफ को जो जीते हैं वो अच्छे तरीके से जी सके, जॉयफुली होकर जी सके. क्योंकि आज हमारा समाज बहुत डैमेज होते जा रहा है मेंटल हेल्थ की वजह से, जो हम उसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे हैं. क्योंकि हम उसे सोचते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो शायद हम छोटे हो जाएंगे या हमें एबनॉर्मल कहा जाएगा. जबकि आज देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई भी एंजाइटी, डिप्रेशन की है, जिसकी वजह से हमें लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं जैसे शुगर, बीपी वगैरह. तो इस वजह से मैं हमेशा ऐसे लोगों की हेल्प करती हूँ जो पूरी तरीके से डैमेज होते जा रहे हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं. सो मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ की बात करें और उसके ऊपर अगर आपको हेल्प लेनी हो तो प्रोफेशनल हेल्प भी ज़रूर है. थैंक यू. सुनना चाहोगे ये बताओ. आपको कैसा लग रहा है अवार्ड रिसीव करते? अगर आप मेरी जगह होते तो आपको कैसा लगता अगर कोई आपको अवार्ड देता? हमेशा कहीं पे भी अगर आपको रिस्पेक्ट दिया जाए या आपको अवार्ड दिया जाए तो ज़रूर से खुशियाँ ही मिलती है और अपने लिए वर्दीनेस फील करते. सही है कि नहीं, है ना? मैं भी चाहती हूँ आप लोग भी अवार्ड के हकदार हो. आप लोग भी जो काम कर रहे हो इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से कर रहे हो ना, तो मेरा ये अवार्ड भी आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ कि आप भी अपने लिए जो मेहनत करते हो, अपने प्रति जो प्यार रखते हो ना, उसके लिए भी मैं आपको अपने दिल से प्यार भरा अवार्ड देती हूँ और चाहती हूँ कि जो काम मैं करती हूँ मैं भी आपकी तरह मेहनत से करूँ. मैं एज ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, इमेज कंसल्टेंट दुनिया में यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने प्रति अगर आप रिस्पेक्ट रखते हो, आप अपने लिए अपनी नज़रों में अगर सही हो तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता. थैंक यू वेरी मच. ये अवार्ड मुझे द लॉस्ट गर्ल फिल्म आ रही है अभी, जिसको आदित्य रनोलिया जी ने लिखा और डायरेक्ट किया है. पेनोरामा स्टूडियोज़ 5 अप्रैल को ये रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया. तो इसके मैं म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए मुझे ये अवार्ड मिला और डेफिनेटली ये जो विक्रांत जी का इनिशिएटिव है और ये जो फेस्टिवल है सोशल इश्यूज़ पे, क्योंकि हमारी जो फिल्म की भी कहानी एक ऐसी बच्ची की कहानी जो 1984 के राइट में वो बिछड़ जाती अपने पेरेंट्स से और कैसे वो एक जर्नी उसका होता है पूरे अपने अपने अस्मिता को अपने वजूद को तलाशने का, उस संघर्ष की कहानी है. तो मैं सबों को आप लोगों को भी आमंत्रित करूँ कि ये एक बहुत ही सोशल इशू पर एक फ़िल्म है कि 84 का राइट है, प्लस आपको मालूम होगा कि कितनी बच्चियाँ गुम हो जाती हैं. तो ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिनको ये छूती है फिल्म. तो डेफिनेटली अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और अधिक से अधिक लोग देखें इस फिल्म को. यही है हमारा मैसेज. थैंक यू.
थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विक्रांत सर कि उन्होंने हमें इस अवार्ड से नवाजा। और बात करते हैं हमारी कॉन्सेप्ट की। हमारा जो आज फिल्म में इन्होंने जो जीता हुआ है उसका नाम है दानम। ये कॉन्सेप्ट है हमारे बॉडी डोनेट के ऊपर, यानी कि जब जैसे हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद हमारी जो बॉडी को दफनाया जाता है, अन्य रिलीजन में अलग अलग चीज़ें हैं, कभी जलाया जाता है, लेकिन हम अगर अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं तो उसे हम डोनेट कर सकते हैं, राइट। और जैसे कहा जाता है कि अगर अपनी आप पूरी बॉडी डोनेट नहीं करते हो तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होती। तो ये सोच आज की जनरेशन को बदलने का, जैसे सती प्रथा थी वो बंद हो गई, वैसे ही अगर आप अपने बॉडी को डोनेट करोगे उससे कई लोगों की जानें बच सकती हैं। तो इस चीज़ का ये हमारा कॉन्सेप्ट है दानम, और इस वजह से हम लोगों को प्राइज़ मिला। हमारी मैम है और स्मिता मैम है जो इस फिल्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा है, राइटर है, बहुत बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है उनका। दानम आप सब समझ ही गए होंगे कि दानम मीन्स दान। तो अंगदान मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दान है कि हम मरने के बाद भी एक शरीर को जीवित रख सकते हैं अपने अंगों के द्वारा, क्योंकि मरने के बाद उन अंगों का कोई मतलब नहीं है। ये मिथ को सबके समाज के दिमाग से ये निकाल देना है, जागरूकता जगानी है हमें कि मरने के बाद हमारा शरीर सिर्फ एक शरीर ही है, उसमें कुछ भी नहीं बचता। आत्मा तो अजर अमर है, नश्वर है। तो आप हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट को लेके चले, इसका मेन जो हमारा मुद्दा था कि हम लोगों जन जन तक ये पहुंचाएं कि आप उपरांत आप अपने शरीर को दान करें। उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें आप जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जागरूकता बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद किसी 50 में से किसी 1-2 को तो हम जगा ही पाएंगे। स्मिता मैम। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। एक छोटे से काम करने को बहुत एफर्ट चाहिए होता है, और यहाँ पे इन लोगों ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके, स्क्रूटिनाइज करके, टैलेंट को पहचान के जिस तरह से लोगों का मनोबल और उत्साह बढ़ाए, दैट इज़ रिमार्केबल। और एक एक अवार्ड तो सिर्फ जो टीम है, जो मेंबर्स हैं उनको भी मिलना चाहिए, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। जिस काम में हम चल रहे हैं हम सही हैं और हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, और हम अपने काम के माध्यम से आगे बढ़ते रहें और लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहें, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसी सोच के संग आगे बढ़ी थी कि अगर एक जीवन में भी बदलाव ला पाई सकारात्मक, और वो औरों के जीवन में भी बदलाव ला पाए, तो मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती जो मुझे मिला डेथ बेड से 3 साल में आज तक यहाँ पे आने के लिए। वो 15 दिन आपको सोचने पे मुझे मजबूर किया कि ज़िंदा क्यों है। तब पता चलता है आप क्यों ज़िंदा हैं अगर वो अनुभव, वो ज्ञान आप लोगों को बांट सकते हैं और वो बदलाव ला सकते हैं। लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट जब आती है तो आपको लगता है कि वो काम सफल हो गया। और इसी उद्देश्य के संग आगे बढ़ी हूँ, खुद से भी हंसूँ और औरों के भी मुस्कुराऊँ, क्योंकि दुनिया एक ऊपरी चेहरा कुछ और है हंसने का, और अंदर का चेहरा कुछ और है। इसलिए इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कि दिल से हंसें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। मेरी इतनी तारीफ़ की सुनील जी ने, धन्यवाद। मतलब मेरा हौसला बढ़ गया, लगता कि और जीवन में अच्छा काम करना पड़ेगा मुझे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ऐसे ही अवार्ड आपको भी मिलते रहें और आपके हाथ से हमें भी। ये सुनील जी के हाथ से मुझे अवार्ड मिला। सर जैसे आपने कहा कि आपका हौसला बढ़ा, आप दोनों से जानना चाहूँगा एक कलाकार के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि इस तरह का अप्रिसिएशन। देखिए भैया, आज का ज़माना इतना टेंशन वाला ज़माना है, डिप्रेशन वाला ज़माना है कि जोश और मौज को डाउनलोड करना पड़ता है। यस, बिल्कुल, वो भी डाउनलोड, जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसे में ऐसे लेजेंड्स या ऐसे दोस्तों साथियों के बीच में रह के आपको जोश और मौज रियल में मिले अवार्ड के ज़रिए, पूरे पारितोष के ज़रिए, सम्मान के ज़रिए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसे कहते हैं कि गॉड गिफ्ट। ये जोश, ये जो अवार्ड है ये एक इंस्पिरेशन होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है जो और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देती है। तो ऐसे अवार्ड मिलते रहने चाहिए। कलाकार जीवित रहता है और अच्छा काम करने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, तो एनर्जी लेवल बड़ा रहता है। अभी थोड़ा सा इनका जोश कम हो गया था, तो ये पंजाब जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब को पता है, आपको जोश का स्टेट माना जाता है, उत्साह का जोश माना जाता था। पंजाब इतना बड़ा
इतना खूबसूरत स्टेट है, हंसने हंसाने भी इतना बिलीव करता Yes, है yes. कि अपना मुख्यमंत्री भी स्टैंड अप कॉमेडियन को बना देता है। स्टैंड अप कॉमेडियन को अपना मुख्यमंत्री बना देता है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में आप जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। Yes. खाना पीना पंजाबी आदि शान वकरी, बल्ले सुबह बल्ले। मुर्गा खाते शाम बकरी। जो नॉनवेज खाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जितने पंजाबी जानते उत्थे नवा पंजाब बसाते हैं, दूरंदेसी होते हैं, देश में भी दूर कनाडा। सीए के बारे में मैंने एक पंजाबी से पूछा, ओ जी सीए तो सिंपल बात है, सी मतलब कनाडा, ए मतलब अमेरिका, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, सी है, बस उनको इसी से मतलब है। तो पंजाबी हमारे बहुत ही प्यारे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पंजाबी मनमौजी है पर देश में मुसीबत है तो हर पंजाबी फौजी है। तो मैं समझता हूँ कि आप वहाँ जा रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे मित्र की तरफ से, भगवान मान की तरफ से। एंड क्या कह रहे हो, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जीवन में। अभी हमारी फिल्म गाली गलौज तो आकर गई है, यूट्यूब पर रही, आप देखिए सुनील पाल ऑफिशियल पर। साथ साथ में एक फिल्म हो रही है कॉफ़ी विथ अलोन। एक डिप्रेशन की कहानी है, एक डिप्रेशन का बंदा है, आजकल हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में है, 2 लोगों को छोड़ के। तो मैं समझता हूँ कि उसे ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं, लेकिन चूँकि मैं आपको पता है थिएटर और लाइव शोज़ में ज़्यादा रमता हूँ, वहीं से मेरा मन लाइव ऑडियंस के बीच में ज़्यादा लगता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बॉलीवुड से कह सकूँ कि भैया काम ज़रूर दीजिए, लेकिन रेट जो तुम चाहो और डेट जो मैं चाहूँ। मेरे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वेब सीरीज़ चल रही हैं, फिल्में चल रही हैं, सीरियल से अभी निपटा हूँ। इतनी बड़ी दाढ़ी थी, सबने देखा था दिल्लियाँ गल्ला, वो ख़त्म हुआ, दाढ़ी साफ़ हुई। अभी ये एक फ़िल्म करके आया हूँ बनारस में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, बहुत अच्छी फिल्म है, लोकेशन कमाल की थी, सब्जेक्ट कमाल का था और रोल भी कमाल का है। फिल्म का नाम है आराध्य, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा। और वो फिल्म बहुत जल्दी सामने आ जाएगी, 3 महीने के अंदर वो फिल्म सबके सामने आ जाएगी। और 2-3 फिल्में और शुरू होने वाली हैं। तो चल रहा है, बस डिफरेंट अलग अलग किस्म के किरदार करने की आदत है, वही निभा रहा हूँ। थैंक यू लव यू ऑल। आप सब जियो हज़ारों साल, जल्दी मिलते हैं। होली मुबारक हो आप सबको, सारे देखने वालों को होली आपके रंग बिरंगी जाए, आपके फैमिली में होली इस तरह से मनाएं कि साल भर आपकी फैमिली हो जाए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। थैंक यू। बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, मेरी अपनी स्टोरी है और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हमारी प्रॉब्लम्स के लिए, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जब हम खुद खड़े होते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इट्स माई फर्स्ट टाइम, मैं एक एक्ट्रेस हूँ बट ये मेरा पहला टाइम है कि मैंने एक मूवी बनाई है। थैंक यू। There's so many. Yeah. Thank you so much, Filmfare India International Awards, for giving this award, and special thanks to the director Pooja Kadam. I have to share something about her. She is super scared of thriller and horror films, but this is her first film that she's written, and she has taken up a big step by killing that fear. And thanks to the cast and crew, amazing work, lovely contribution. We shot this film during lockdown and with a very minimum crew, very bare minimum equipments, and everyone were doing multiple jobs at the same time. And with all the hard work and efforts, this is the result. Thank you so much. Thank you so much. एक्चुअली ये जो अवार्ड है हमें मिला है हमारी डॉक्यूमेंट्री अब कहाँ जाऊँगी, जिसका इंग्लिश नेम है वेयर शैल आई गो नाउ। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये है डोमेस्टिक वायलेंस पे है, पर इसमें जो औरतों की कहानियाँ हैं दे आर नॉट विक्टिम, मतलब वो फाइट किया है उन्होंने, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और अपनी जो उन्होंने कहानी शेयर की है उसमें वो और औरतों को होप दे रही हैं। एंड ये पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें एक कंप्लीट स्टोरी लाइन है, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है कि सालों साल औरतें एक्चुअली क्यों सहती रहती हैं। क्योंकि जब भी देखिए किसी औरत को पूछा जाता है कि आप इतने साल तक चुप क्यों रही, आप बोली क्यों नहीं है, तो सभी औरतों को हमने जब पूछा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा था, इतने साल वो क्यों सहती चली गई, तो उनके अलग अलग जवाब, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, और 90% सबका यही आंसर था कि हमारे माँ, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स ने हमें बस यही सिखाया था कि वहीं रहना है, जो मर्जी हो जाए वहाँ से निकलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा था, हम मार खाते थे, वापस आते थे, फिर भेज दिया जाता था। और
समझ में ये नहीं आता था कि वो वर्किंग वुमेन है जो हमारी डॉक्यूमेंट्री में दे ऑल apart from that, also the thing is it is shooted in Kutch, and also we are trying to show the beautiful heritage and culture of Kutch in this. नवाजा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बस कि ऑर्गन डोनेशन हर इंसान को करना चाहिए। कि अगर कोई इंसान ऑर्गन डोनेशन करता है वो कितने लोगों की जान बचा सकता है। एक इंसान पता नहीं 4 से 5 लोगों की जान बचा सकता है। मैंने भी किया है। मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद, शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद एक बंदा भी करेगा ना तो हमें बहुत खुशी होगी कि उसने कितने लोगों की जान बचा दी। बस हमारा यही मुहिम है कि सबको कि ये जन जन तक पहुँचे, और एक बंदा भी तैयार होता है इस चीज़ के लिए तो हमें बहुत खुशी रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी की बात है और साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि इस काम को तो अच्छा पसंद किया, लेकिन आगे इससे भी बेहतर और बेहतर हम लोग मैं काम करूँ। सम्मान मिलता है, कितनी खुशी बढ़ जाती है, कितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हाँ, सम्मान बढ़ के तो खुशी तो आप देख ही रहेंगे मेरी शक्ल पे, लेकिन खुशी के साथ साथ एक एहसास भी है, एक जिम्मेदारी भी बनाना है और बेहतर काम करना है, बेहतर जवाबदेही समाज के लिए थ्रू सिनेमा। मेरे करियर का पहला अवार्ड है, सो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मतलब इस अवार्ड को पकड़ के मुझे जो फील हुआ है आज, वो मैं अभी कभी भी शायद वो पहला एक्सपीरियंस मैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग है इस वक्त, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरी फिल्म मैनी क्वीन के लिए है, जो एक ब्लाइंड लड़के के ऊपर है, उसके इमेजिनेशंस के ऊपर है कि अगर वो एक लड़की को देख नहीं सकता तो वो एक मैनी क्वीन के थ्रू उस लड़की को इमेजिन करता है, उस लड़की को फील करता है, और उसके इमेजिनेशन का लेवल वो क्या होता है वो उस स्टोरी पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।